Hello guys, now I am Dr. Sachin Raut. Now the second session. In last session we are studied about the vegetative propagation. Now the second session is a sexual reproduction in flowering plant. Sexual reproduction in flowering plant. So now in this topic we are studied about structure of flower, structure of anther and development of male gametophyte. So what is flower? Flower is highly modified condensed shoot, specially meant for sexual reproduction. Specially meant for sexual reproduction. So now it develops from the floral primordia. किससे कहाँ से डेवलप होता है? फ्लोरल प्रीमोडिया. कभी यहाँ पे देखो कोई भी बर्ड्स डेवलप होती है, फ्लावर बर्ड्स, तो जो डेवलप होती है बर्ड्स वो लीव प्रीमोरिडिया से डेवलप होती है, उससे बाद में फ्लावर बन जाता है. सो नाउ flower consists of main two whorls, accessory whorl and essential whorls. So now we are studied only about the essential whorls. The essential whorls are androecium and gynoecium. Androecium represented male gametophyte, while gynoecium represented female gametophyte. Androecium consists of number of stamens. Androecium consists of number of stamens. Androecium में क्या रहता है? Stamen. It is a part of male gametophyte, while gynoecium consists of carpel. So today we are studied about only male gametophyte, male reproductive organ. So now these are the diagram which shows a typical flower structure. Okay. So now this typical flower structure shows different parts. So now look at here, the next stamen. Stamen is composed of filament, anther and connective, and it produces pollen grains, microsporangium. So these are the typical structure of flowering structure which shows accessory and essential whorls. The accessory whorls are calyx, corolla, while essential whorls are stamen and carpel. Now what is stamen? Stamen represented male reproductive organ. It consists of main two parts, filament and anther. कहाँ कहाँ पे तीन दिया रहता है, कनेक्टिव भी रहता है. ओके, फिलामेंट्स एंड एंथर. फिलामेंट इज अटैच टू द थैलामस. ऊपर की डायग्राम देखो, यहाँ पे फिलामेंट किससे अटैच है? थैलामस और पेटल्स. अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज अ बायलोब. आप लोग ऊपर की डायग्राम में देख सकते हो कि ये बायलोब स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. टिपिकल एंजियोस्पर्म इन मोस्ट ऑफ द प्लांट इट इज अ बायलोब स्ट्रक्चर. Each lobe has two theca. Two theca means यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं आपको. They are called as a diathecus. Each anther consists of 4 microsporangia. Each anther consists of 4 microsporangia. Microsporangia is called as a pollen sac. Microsporangia become a pollen sac and are packed with the pollen grain. So ये हम लोगों ने देखा कि stamen stem represented male reproductive organ. It consists of filament and anther. Filament attached to the thalamus or petal. It is a bilobe structure, diathecus, and each anther consists of 4 microsporangia. Okay, microsporangia become a pollen sac which produce a number of pollen grain. Now next one is the structure of anther. Structure of anther. So now यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या माइक्रोस्पोरेंजियम और या उसको टीएस ऑफ एंथर भी बोल सकते हैं हम लोग. So it consists of pollen wall and microsporangium. Microsporangium, pollen sac. Okay. So pollen wall consists of 4 layer: epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. आप लोग डायग्राम में क्लियर कट देख सकते हैं. पहली लेयर जो दिख रही है वो epidermis है, सेकंड है endothecium, थर्ड है middle layer और फोर्थ वन कौन सी है? tapetum. ओके. दूसरे डायग्राम में आप लोग डिहाइसेंस देख सकते हैं. जो पॉलन ग्रेन्स आफ्टर मैच्योरिटी दे अंडरगोज डिहाइसेंस. मगर फर्स्ट डायग्राम आप लोग देखोगे तो इसमें पॉलन वॉल लेयर क्लियर कट दिख रही है और इनर आपको क्या दिख रहा है? माइक्रोस्पोर मदर सेल जो प्रेजेंट किसमें है? पॉलन सैक में. सो नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. इपिडर्मिस. आप लोग पहली जो लेयर दिख रहे हैं इपिडर्मिस. सो नाउ दिस इपिडर्मिस इज सिंगल लेयर. इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट अराउंड द माइक्रोस्पोरेंजियम. इट इज मेड अप ऑफ सिंगल पैरेन्काइमेटस सेल. किसी में नहीं है? पैरेन्काइमेटस सेल. जो अभी सेकंड लेयर है एंडोथेशियम. सो नाउ एंडोथेशियम इज द इनर टू द इपिडर्मिस. कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर टू द epidermis.
इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, इसमें क्या लेयर है, सिंगल लेयर है. इट शो अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबरस थिकनिंग ऑफ कैलस. इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइबरस थिकनिंग ऑफ कैलस. ओके, फाइबरस थिकनिंग ऑफ कैलस. कैलस इज अ सेलुलोजिक कंपाउंड and it hygroscopic in nature. It absorbs water from the surrounding after maturity and help for the dehiscence. तो पहले हम लोगों ने epidermis देखा. epidermis is a single layer made up of parenchymatous cell. It is a protective layer. Second देखा endothecium. endothecium present inner side to the epidermis. main characteristics क्या endothecium का, fibrous thickening of callus. callus is a cellulosic compound which help for the it is a hygroscopic in nature and help for the dehiscence. Now third layer is a middle layer. Middle layer is a 1 to 3 layers present between the tapetum and endothecium. Tapetum and endothecium. It degenerate at maturity. Maturity में ये जो 3 layer जो दिख रही है middle layer 1 to 3 layers they are degenerate at maturity. Mature आप लोग anther देखोगे तो उसमें ये layer नहीं रहती. Now next one is a मिडल लेयर. मिडल लेयर के बाद क्या आएगा, टैपेटम. टैपेटम इज अ इनरमोस्ट लेयर प्रेजेंट अराउंड अ pollen sac. प्रेजेंट अराउंड अ pollen sac. इट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर. ये लेयर कैसी है, मल्टी न्यूक्लिएटेड विद डेंस साइटोप्लाज्म. ये अंदर की जो लेयर दिख रही है आपको टैपेटम, इट इज़ अ मल्टी लेयर विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट प्रोवाइड नरिशमेंट. ये क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स जो इस बाद में पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट होने वाले हैं. ओके, ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ एंथर का पॉलन वॉल लेयर. नाउ नेक्स्ट वन इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम. नेक्स्ट वन इज अ माइक्रोस्पोरेंजियम. द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन होमोजेनस सेल कॉल्ड एज अ स्पोरोजेनस टिश्यू. आप लोग क्लियर कट डायग्राम में देख सकते हो कि अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है. कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू. Okay, now these sporogenous tissues are diploid in nature. These layers are diploid in nature. This microsporangium shows a diploid cells. So now microsporangium inner जो आपको दिख रहा है बीच में, this microspores. Okay, now in immature stage it consists of diploid sporogenous tissue. Diploid sporogenous tissue. Now this sporogenous tissue undergoes meiosis. It undergoes meiosis to form 4 haploid microspores. The process is called as a microsporogenesis. Microsporogenesis. जो अंदर के जो सेल है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अंदर के जो सेल है इमेच्योर स्टेज में वो स्पोरोजेनस टिश्यू है. और स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे है, डिप्लॉइड इन नेचर. ये स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस. क्या हो रहा है यहाँ पे, इट अंडरगोज मियोसिस. मियोसिस होने के बाद इट फॉर्म्स 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. ओके, और माइक्रोस्पोर्स के बाद में क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन. ओके, आफ्टर डिहाइसेंस इट माइक्रोस्पोर्स फॉर्म यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड पॉलन ग्रेन. क्या बना रहा है ये, आफ्टर डिहाइसेंस ईच माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्स अ यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर पॉलन ग्रेन. ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. देखो आप लोग अभी तक हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या देखा, टीएस ऑफ एंथर. टीएस ऑफ एंथर में हम लोगों ने पॉलन वॉल लेयर देखा, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और टैपेटम. सेकंड देखा हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम इज अ पॉलन सैक. इमेच्योर स्टेज में क्या प्रेजेंट इसमें, डिप्लॉइड स्पोरोजेनस टिश्यू. मैच्योर होने के बाद डिप्लॉइड स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड ईच माइक्रोस्पोर्स गिव अ 4 यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेल्युलर पॉलन ग्रेन. नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन. आपको ऊपर डायग्राम जो दिख रही है वो पॉलन ग्रेन की डायग्राम है, स्पेरिकल पॉलन ग्रेन है. सो पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन वेरियस शेप. मैंने स्पेशली स्पेरिकल बोला है आपको, मगर अलग अलग स्पीशीज़ में पॉलन ग्रेन का शेप अलग अलग रहता है. ओके, सो नाउ स्पेरिकल पॉलन ग्रेन shows a 2 layer outer exine and inner intine togetherly called as a sporoderm. इसमें लिखा नहीं मैंने, but togetherly called as a sporoderm. Outer exine and inner intine. Exine is made up of sporopollenin. Exine is made up of sporopollenin. जो टैपेटम लेयर आप लोगों ने स्टडी की है, टैपेटम help to contribute formation of sporopollenin.
help to contribute formation of sporopollen, and it resistant against chemical and biological resistant against organic matter. हाई टेम्परेचर मीन्स फिजिकल बायोलॉजिकल वेदरिंग से उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. नियर इनर मोस्ट लेयर इज अ इंटाइन. इंटाइन इज अ थीन कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. वापस देखो फर्स्ट एक्साइन लेयर जो है, एक्साइन लेयर किससे बनी है, स्पोरोपोलोनिन. स्पोरोपोलोनिन कौन बनाने के लिए हेल्प करता है, टैपेटम. टॉप पे टैपेटम हेल्प टू कंट्रीब्यूट फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोपोलोनिन. स्पोरोपोलोनिन क्या करता है, बायोलॉजिकल केमिकल और फिजिकल वेदरिंग से पॉलन ग्रेन को बचाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट लेयर इज अ इंटाइन. और आप लोगों ने एग्जाम में देखा, एग्जाम में इट इज इंटरप्टेड एट मेनी प्लेस. दिस इंटरप्टेड एट मेनी प्लेस इज कॉल्ड एज अ जंप पोर. थ्रू दिस जंप पोर्स pollen tube is arise. Okay, now next one is intine. Intine is the innermost layer and made up of cellulose and pectin. Cellulose and pectin are हाइड्रोफिलिक कंपाउंड. जब जर्मिनेशन में ये कंपाउंड क्या करते हैं, एब्जॉर्ब शुगरी सब्सटेंस फ्रॉम द पिस्टल of the stigma, and it help to formation of pollen tube through the germ pore. योगा स्ट्रक्चर ऑफ pollen grain. pollen grain हम लोग देखा, outer exine, inner intine, togetherly called as a sporoderm. Okay, now these are the unicellular uninucleated structure. now pollen grain देखो अभी inner structure देखते हैं हम लोगों ने. sporoderm structure देखा, exine और intine. inner pollen grain cytoplasm is surrounded by plasma membrane. मैच्योर pollen grain हैज़ 2 cells. मोस्टली बहुत सारे स्पीशीज में 3 सेल भी पाए जाते हैं, मगर मोस्टली यहाँ पे कितना है, 2 सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. इसमें 2 दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, एक दिख रहा है वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल इज अ बिगर एंड अबेंडेंट फूड रिजर्व, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस. वेजिटेटिव सेल कैसा है, साइज में बड़ा है थोड़ा सा. इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस. वाइल जनरेटिव जो सेल जो नीचे दिया है आपको नीचे की तरफ, इट इज स्मॉल स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. इसमें क्या है, स्मॉल है, स्पिंडल शेप है, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. फ्लोट इन द वेजिटेटिव सेल ऑफ साइटोप्लाज्म. जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमेट. जनरेटिव सेल बाद में लास्ट डेवलपमेंट स्टेज में डिवाइड होता है माइटोटिकली टू फॉर्म 2 मेल गैमेट. तो हम लोगों ने pollen grain का स्ट्रक्चर देखा. pollen grain स्ट्रक्चर में आउटर स्पोरोडम स्ट्रक्चर लिया. स्पोरोडम में क्या है, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन. एक्साइन हो गया, इंटाइन हो गया. उसके बाद हम लोगों ने देखा अंदर का साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल लार्जर इन साइज, अबेंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, वाइल जनरेटिव सेल कैसा है, जनरेटिव सेल इज स्मॉलर and divided mitotically to form 2 male gamete. Now next one, last topic is a development of male gametophyte. So development of male gametophyte occur at 2 stages. It is endosporic. Endosporic inside होता है. Develop at 2 stages. First, before pollination in the pollen sac, and second, after pollination on the stigma. Before pollination पहला कौन सा है, before pollination in the pollen sac, after pollination on the stigma. So हम नीचे के डायग्राम जो देखो before pollination in pollen sac. Before pollination in the pollen sac में क्या प्रेजेंट है, डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू. क्या प्रेजेंट है, डिप्लॉइड स्पोरोजिनस टिश्यू. ओके, डिवाइडेड meiotically. It undergoes meiosis to form 4 haploid, क्या बनाता है, 4 haploid microspores. हम लोगों ने पहले स्टडी किया हम लोगों ने. एंड ईच माइक्रोस्पोर्स गिव्स अ यूनिन्यूक्लियर यूनिसेल्युलर माइक्रोस्पोर्स, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स. सो नाउ स्पोर वापस देखो, स्पोरोजेनस टिश्यू है डिप्लॉइड, अंडरगो meiosis, act as a sporogenous tissue act as a microspore mother cell. Microspore mother cell undergoes meiosis to form haploid tetrad microspores. Each haploid tetrad microspores gives a 4 uninucleate unicellular pollen grain. So now this uninucleate unicellular pollen grain before dehiscence, ये एंथर से लिबरेटेड होने से पहले, इट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. देखो meiosis पहले हुआ,
जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस टू फॉर्म 4 टेट्राड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। उसके बाद एक टेट्राड से 4 पॉलन ग्रेन बने। 4 पॉलन ग्रेन में कैसे है, यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। ये पॉलन ग्रेन बिफोर डीहाइसेंस अंडरगोस माइटोसिस, पहले मियोसिस हुआ अभी माइटोसिस हो रहा है, टू फॉर्म लार्जर वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर जनरेटिव सेल, एंड नाउ दिस 2 सेल स्ट्रक्चर रेडी फॉर डीहाइसेंस। तो अब देखो बिफोर पॉलिनेशन में क्या पे हो रहा है, माइक्रोस्पोलन सैक में, पोलन सैक में कौन से सेल, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, पोलन सैक में कौन से टिश्यू थे, स्पोरोजेनिक टिश्यू। स्पोरोजेनिक टिश्यू एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस होने के बाद इट फॉर्म्स हैप्लॉइड टेट्राड माइक्रोस्पोर्स। ईच टेट्राड में 4, फ्रॉम ईच टेट्राड 4 हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेल्युलर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म। ये कैसा है, यूनिसेल्युलर यूनिन्यूक्लिएट। बाद में दिस पोलन ग्रेन अंडरगोज बिफोर डीहाइसेंस इट अंडरगोज uneven mitosis. Uneven mitosis में it forms larger tube nuclei, smaller generative cell. You are before pollination. So now this 2 cell structure ready for dehiscence, and now the next step is after pollination on the stigma. After successful pollination, the 2 cell stage pollen grain deposited on the stigma. कहाँ पे deposit हुआ, stigma पे. Now in stigma there is a chemotatic reaction which takes place. There is a pollen pistil interaction is there, and it allow for germination. Only self compactable, मैंने word क्या यूज किया, self compactable pollen grain allow for germination. So now the pollen tube is emerge out from the germ pore, and pollen tube carry vegetative cell first, pollen cytoplasm and generative cell. When this pollen tube, देखो pollen tube फॉर्म हुए, pollen tube में पहले क्या माइग्रेट हुआ, तो साइटोप्लाज्म, pollen cytoplasm के साथ वेजिटेटिव सेल, बाद में जनरेटिव सेल. ओके, when this pollen tube reaches towards the ovule in the ovary, कहाँ पे reaches हुआ, ovule in the ovary, the vegetative cell degenerate हो जाता है, and generative cell undergoes second mitosis. पहले माइटोसिस हुआ था बिफोर पॉलिनेशन में, अभी सेकंड माइटोसिस हुआ टू फॉर्म 2 हैप्लॉइड नॉन मोटाइल मेल गैमेट, एंड नाउ दिस 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन. सो नीचे के डायग्राम में दिया है, देखो जनरेटिव सेल बाद में है, पोलन ट्यूब में पहले ट्यूब न्यूक्लिया जब ओविल के पास पहुंच जाता है पोलन ट्यूब न्यूक्लिया डीजनरेट हो जाता है, और जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट, एंड दिस 2 हैप्लॉइड मेल गैमेट रेडी फॉर डिहाइसेंस. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू, बाय, टेक केयर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, थैंक्स. नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे नया टॉपिक लेके, फीमेल गैमेटोफाइट का, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ऑयल और डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. आज के लिए इतना ही.